पूछो जाके उनसे जिन पे रोशनी नहीं, पूछो जाके उनसे कैसी लगती है कमी. Session is pediatric examination approach, which will be delivered to us by Zeba Naz. So she has completed her bachelor's in optometry from Jamia Hamdard, and she did her internship at Venu Eye Institute and Research Center. She did her research project on distribution of corneal and lenticular astigmatism. Presently, she is proactively working for the awareness of optometry and eye care. So just without wasting time, let's get started. You guys can just pen down your queries in the chat box, which will be discussed collectively at the end. So as the topic suggests, pediatric eye examination, the right approach. So I'll just take you through the very basics of pediatric eye examination, and I'll try to not go in depth of each of it. Okay, so whenever we hear the word pediatrics, what comes in our mind is lack of subjective responses. होता है कि कई लोगों को pediatric cases पसंद आते हैं, कई लोगों को नहीं आते हैं, but जो सबसे common चीज है वो है lack of subjective responses, क्योंकि आप उन पर rely नहीं कर सकते उनका कैसा response होगा. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, पहले तो acknowledgement, references from Optom, Sakina Musaji, some are from AK Khurana, and some of it is from pediatrics for medical students. Okay, so most of the time when the child enters to our clinic or OPD, they won't even look at you, right? They either cling on their mothers or they are crying. So no matter how the child enters, आपका जो aim होना चाहिए वो होना चाहिए कि at the end वो happy patient बन के निकले, right? But the question is how. ठीक है, तो उसके लिए जो बेसिक चीजें अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी कोई पेशेंट एंटर करता है हमारे रूम में या हमारी क्लिनिक में ओपीडी में, सो वी शुड ऑलवेज वेलकम देम विद अ स्माइल. ओके, वी शुड ऑलवेज इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, ऑफर देम सम टॉफीज एंड चॉकलेट्स. अगर ओपीडी में नहीं है तो आप खुद लेकर जा सकते हो. ठीक है, ऑलवेज कीप आई कॉन्टैक्ट विद देम एंड ऑलवेज स्टार्ट विद अ गुड कॉन्वर्सेशन. जैसे पेशेंट एंटर करता है, डोंट स्टार्ट विद व्हाट इज योर प्रॉब्लम एंड व्हाई यू हैव कम. जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद देम, आस्क अबाउट देयर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स और कॉम्प्लीमेंट देम अबाउट देयर ड्रेसेस. सो यू शुड ऑलवेज मेंटेन good rapport with the patient. The visual development milestones, so this you will find in every pediatric book. These are the things we always have to keep in mind, that how the development in the child takes place. Next is history taking, right? So in history taking we have to keep in mind these steps. So the first one is the purpose and the chief complaint. So जैसे history taking हम पेशेंट्स में करते हैं, पीडियाट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो पहले तो हम उनको उन पर्पस पूछेंगे, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विजिट एंड व्हाट इज देयर चीफ कंप्लेंट्स. ठीक है, आस्क द पेरेंट्स इफ दे हैव नोटिस्ड एनी स्क्विंट और एबनॉर्मल हेड पोस्चर्स. मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आस्क देम, बिकॉज दे विल नॉट टेल देम बाय सेल्व्स. कई बार ये होता है कि वो दे टेंड टू हाइड इट, और कई बार ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं, बताना भूल जाते हैं, और फिर उनको बाद में याद आता है अच्छा ये चीज भी थी हमने बताई नहीं. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्यूलर हिस्ट्री. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्लासेस के बारे में पूछोगे कि इफ द पेशेंट इज यूजिंग एनी ग्लासेस, इफ यस फॉर हाउ लॉन्ग द पेशेंट इज यूजिंग ग्लासेस, एंड वेदर द पेशेंट इज कंप्लायंट और नॉट. If not, then why not? So you have to ask these questions and you should always mention all these things. Then you have to mention about the patching. If the patient is having any patching history that is done, or for how long patching have been done, and how was the compliance. Similarly, if they have done any vision therapy, then also you should mention the details. Clear है ना? अगर ज्यादा फास्ट जा रही होंगी तो बता देना मुझे. ठीक है, अगर कोई कैटरैक्ट सर्जरी या स्क्विंट सर्जरी हुई है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत नेसेसरी है, बिकॉज हमें आरओपी बेबीज को रूल आउट करना है. एंड देन लेजर के बारे में पूछो उनसे. ठीक है, मसाजेस, बिकॉज जनरली पीडियाट्रिक केसेस में देखा जाता है कि कोई ना कोई अगर abnormality है इन द lacrimal system, then they will be advised to do some massages. So you should always write that. Next is medical history.
So along with ocular conditions, we should always ask them about the systemic condition of the child. That how is the child's overall development, whether the child is walking properly, how is the overall growth, speech, motor skill development, or if the child is getting any seizures, that is मतलब कोई भी अगर जैसे epilepsy है या इस टाइप की कोई चीज है तो हमेशा मेंशन करो उसको. ठीक है. नेक्स्ट इज द चाइल्ड टेकिंग एनी सपोर्टिव थेरेपीज. तो सपोर्टिव थेरेपीज में आ जाता है आपका फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिर स्पीच थेरेपी. तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करना इम्पोर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि मोस्टली कंडीशंस क्या होती हैं, जेनेटिक होती हैं. लाइक मायोपिया जेनेटिक हो सकता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकता है. सो इट इज इम्पोर्टेंट to know if the parent or sibling had any eye condition or underwent any eye surgery. So next is medications and investigations. तो उसमें हमें ocular medications तो हम लिखते हैं, साथ साथ हमें जो सिस्टमिक मेडिकेशंस अगर कोई वो ले रहा है तो वो हमें मेंशन करना जरूरी है. बिकॉज जैसे अस्थमा हो गया या इस टाइप की जो भी मेडिकेशंस होती हैं, कुछ मेडिकेशंस में स्टेरॉइड्स होते हैं एंड स्टेरॉइड्स हैव ocular manifestations. So if they can talk to a physician or pediatrician और उनका कोई substitute medicine अगर वो prescribe करते हैं तो that will be better. And ask the patient if they have allergy as you would do normally. And lab investigation. So lab investigation you should ask if they have underwent any investigation as such, like CT scan है, MRI है, और अगर है तो what was the reason, or it's better to ask them for the report of that investigation. Next is child's overall health. उसके बारे में पूछोगे. And if there was any maternal illness during pregnancy, what was the route for delivery? Maternal history is important because if she have had any infection, you'll get to know about that. And what was the baby's gestational age at delivery? क्योंकि अगर अर्ली जेस्टेशनल एज होगी, दैट इज बिफोर 28 मंथ्स, तो दे विल हैव लो बर्थ वेट. ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन लेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि आरओपी के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दीज केसेस शुड बी चेक्ड एट बर्थ एंड एट 4 to 6 वीक्स ऑफ एज एंड रेफर टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टू बी फॉलोड. ठीक है. ऑल्सो नोट, अगर कोई न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो हमें हमेशा हिस्ट्री टेकिंग के टाइम पर नोट करना है. ठीक है. अब अगर कोई मेडिकेशन या सब्सटेंस यूज करे, स्पेशली स्मोकिंग, तो क्या होता है, स्मोकिंग में काफी सारे एनालिसिस हो चुके हैं जो मतलब ये दिखाते हैं कि उसका जो रिस्क फैक्टर है चाइल्डहुड ग्रोथ पर, तो उसका सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है फॉर हाइपर एंटर करता है. हमने डिसोसिएट नहीं करा है. ठीक है. तो ऑलरेडी आईज फ्यूजन पोजिशन में है, तो हम उन आईज को ईच वन बाय वन हम देख सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट इज स्टीरियोप्सिस, जो डेप्थ परसेप्शन जैसे हम होगा देखते हैं. तो उसके लिए हमारे लोकल के लिए वी यूज लिटमस फ्लाई टेस्ट एंड देन ग्लोबल रैंडॉल्ट फ्लाई टेस्ट और रैंडॉल्ट टेस्ट. तो ये दोनों जो टेस्ट हैं वो हमेशा 40 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्यूजन. तो फ्यूजन में हम दोनों नियर के लिए देखेंगे एट 33 सेंटीमीटर एंड फॉर डिस्टेंस एट 6 मीटर्स. ठीक है. तो उसके लिए हमारा वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट रहता है. तो इसमें क्या होता है, पेशेंट विल वेयर रेड एंड ग्रीन ग्लासेस, रेड इन फ्रंट ऑफ राइट आई एंड ग्रीन इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट आई. और जो बॉक्स हमारा ये जो टारगेट है, इस पर पेशेंट को फिक्सेट कराएंगे. ठीक है. तो 4 लाइट्स पेशेंट देखेगा, तो पेशेंट को रेड लाइट थ्रू रेड फिल्टर दिखाई देगी और ग्रीन लाइट थ्रू ग्रीन फिल्टर. ठीक है. एंड जो व्हाइट लाइट है दैट कैन बी सीन विद बोथ आईज. सो अगर पेशेंट को चारों डॉट्स दिख रही हैं इस तरह से, ठीक है, दैट इज 1 रेड 2 ग्रीन 1 व्हाइट और रेड और मिक्सचर, तो दैट मींस ही शी हैज नॉर्मल बाइनोक्युलर सिंगल विजन. बट अगर पेशेंट को 3 ग्रीन लाइट्स दिखती हैं, दैट मींस दैट राइट आई सप्रेशन है वहां पर. और अगर 2 रेड लाइट्स ओनली दिख रही हैं तो लेफ्ट आई सप्रेशन. और अगर उसको 5 लाइट्स दिखती हैं तो देयर इज डिप्लोपिया. ठीक है. नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन. तो फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम बोलते हैं तो वी हैव टू रिमेम्बर दैट द चाइल्ड नीड्स टू बी कोऑपरेटिव, alert, engaged, because sometimes poor interest is indicative of poor vision. So it is necessary to engage the child. ठीक
ठीक है. तो always watch the infant's visual interaction during the visit to see if there is any concern or not. ठीक है. टॉक टू द चाइल्ड, उनसे बात करो, बिकॉज अगर आप एंगेज नहीं करोगे तो चाइल्ड विल लूज इंटरेस्ट और फिर वो आप जो टेस्ट है वो प्रॉपरली नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो टॉक टू द चाइल्ड एट एन अप्रोप्रिएट लेवल, इंक्लूड प्ले सो दैट द चाइल्ड इज मोर एंगेज्ड एंड कोऑपरेटिव ड्यूरिंग एग्जाम. सो फर्स्ट इज इंस्पेक्शन. ठीक है. तो जनरल इंस्पेक्शन, जैसे ही पेशेंट एंटर करता है, हम नॉर्मली भी हम इंस्पेक्ट करते हैं किसी भी पेशेंट को. तो इसमें हमें क्या देखना है पीडियाट्रिक केसेस में, कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज हैं जैसे टॉसिस हो गया या कॉर्नियल ओपेसिटी, कैटरैक्ट हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में विजन अफेक्ट करेंगी. तो ये सारी चीजें देखना. आईलिड्स देखो, कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, उस पर ध्यान दो. नेक्स्ट इज आइरिस एंड द प्यूपिल. तो हमेशा ऑब्जर्व करो कोई सेम साइज में है, प्यूपिल इज राउंड या कोई डिफेक्ट है, whether the pupil is reactive or not reactive. And the next one is sclera. So sclera should be clear white with a tinge of blue and gray. उसके बाद आता है fixation and follow. So fix and follow हमें दोनों horizontally भी देखना है और vertically भी देखना है. तो इसमें you'll ask the child to help you perform the next parts of the exam. So let's examine what will you examine, whether the child fixate at the object and follows. तो कई बार newborn baby आते हैं तो वो तो obviously आप follow नहीं कर पाएंगे. तो 6 weeks के बाद जैसे कोई baby आ रहा है तो they will respond to the examiner's space, and most of the infants will be able to fix and follow by 3 months. ठीक है. तो next is Hirschberg's test. तो Hirschberg's test में हम जनरली अगर कोई मैनिफेस्ट स्क्विंट है वो हम पता लगा सकते हैं. तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, हम विल आस्क द पेशेंट टू फिक्सेट एट अ पॉइंट लाइट हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33 सेंटीमीटर. ठीक है. और हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स उसका देखेंगे. सो अगर सेंट्रल कॉर्नियल रिफ्लेक्स है दैट मींस दैट इज नॉर्मल. बट अगर डिसेंटर्ड है, ऑफ सेंटर है रिफ्लेक्स, दैट तो जिस भी आई में ऑफ सेंटर्ड रिफ्लेक्स हमें दिखने को मिलेगा, दैट विल बी द स्क्विंटिंग आई. सो इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले में तो देयर इज, यहाँ पर एक में तो सेंटर में है, नेक्स्ट इज ऑफ सेंटर, राइट. तो दैट इंडिकेट्स ईजोट्रोपिया. सिमिलरली नेक्स्ट एक्सो हाइपरट्रोपिया एंड हाइपोट्रोपिया. नेक्स्ट है हमारा कवर टेस्ट. ठीक है. तो कवर टेस्ट हमारा एक तो हो गया, हमारा नॉर्मल कवर टेस्ट हो गया, और दूसरा कवर अनकवर टेस्ट. ऑडिबल है ना, क्लियर है? जी जी. उसके बाद है हम पीबीसीटी. तो पीबीसीटी में हम क्या करते हैं, जो हमारा एंगल ऑफ डिविएशन है वो हम पता लगाते हैं ऑब्जेक्टिवली इन वेरियस डायग्नोस्टिक पोजीशन ऑफ केस. ठीक है. तो प्रिज्म जो हमारा इंक्रीज का प्रिज्म होगा, उसका apex towards deviation is placed in front of one eye and the patient is asked to fixate a target with other eye. Next, extraocular muscle movement हम check करेंगे. We'll just ask the patient to fixate at one target and we'll just move it in all position of gaze. And next we'll see is pupillary reaction. Pupil कैसे react कर रहा है. उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ विजुअल एक्टिविटी इन प्री स्कूल चिल्ड्रन. तो बट इन्फेंट्स में अपार्ट फ्रॉम दीज टेस्ट व्हाट यू विल आल्सो कीप इन माइंड इज कि अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें तो आप ऑब्वियसली ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस टेस्ट नहीं करोगे. सो व्हाट यू विल सी, यू विल लुक फॉर मीनस रिफ्लेक्स, मीडिया क्लैरिटी और प्यूपिलरी रिएक्शन है या नहीं. ठीक है. Next important thing is refraction. So in case of neonates, infants, toddlers and preschool children, हम subjective refraction पर rely नहीं कर सकते हैं because वो उनका response इतना reliable नहीं है. ठीक है. तो we have to depend on objective readings only. And अगर high cylindrical reading आ रही है कभी भी तो we'll always take keratometry readings. तो अब अगर keratometry readings AR पर लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चा है वो नहीं
कंफर्टेबल होगा, तो हैंड हेल्ड केराटोमीटर्स होते हैं, तो उससे यू कैन टेक केराटोमेट्री रीडिंग्स. सिमिलरली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में इट इज इजी बिकॉज आप उनका ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन रिलायबल होगा, फिर आप उनका सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कर सकते हो. सिमिलरली अगर हाई सिलेंडर है तो केराटोमेट्री रीडिंग्स लेना जरूरी है. And dilated examination is important in all the cases. Like cycloplegic जो है recommended है because आप उनका overall ocular health भी measure check कर रहे हो, right? Child different है तो उसके साथ हमें patient रहना पड़ेगा and be ready to improvise. ठीक है, तुम एक तरीके से तुमने अगर child को एक चाइल्ड को देख लिया तो जरूरी नहीं है सेम तरीके से तुम दूसरे चाइल्ड का विजुअल एक्टिविटी असेस कर पाओ या ओवरऑल एग्जामिनेशन कर पाओ. ठीक है, सो ऑलवेज बी ओपन टू इम्प्रोवाइजेशन और हमेशा विजन को रीचेक करना है. बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या प्री स्कूल चिल्ड्रन 3 से 4-5 इयर्स के, वो काफी जल्दी चीजें याद कर लेते हैं. तो अगर उन्होंने एक बार ही कोई चीज देख ली तो दे विल जस्ट मग इट अप एंड रिपीट द सेम विदाउट इवन लुकिंग एट इट. ठीक है, तो हमेशा दूसरे चार्ट्स यूज करो. विजन के लिए चार्ट चेंज कर दो, या अगर तुमने एक बार तुम्हारे पास विजन ड्रम है तो अगर एक बार तुमने अल्फाबेट्स पढ़ा दिए तो नेक्स्ट टाइम तुम ई कट चार्ट पढ़ा दो. ऑलवेज बी पोलाइट टू देम. अगर तुम गुस्सा करोगे तो वो तुमसे ज्यादा गुस्सा करेंगे और तुम्हें एग्जामिनेशन करने ही नहीं देंगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हर स्टेप इम्पोर्टेंट है, तो उसको मिस नहीं करना है किसी भी स्टेप को. ठीक है.